अगर आप अपना नॉन प्रोडक्टिव डे भी एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो भाई आज कुछ नहीं है. आई थिंक दैट्स स्पिरिचुअलिटी. बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर फियर्स and the intuition. I'm very fascinated with human mind. Anup Inder Kaur. She is a clinical psychologist and a spiritual seeker. I think I was rejecting my whole personality. वहाँ पे हम ऐसे भटकते रहें कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जो मैं पहले करती थी. ये ट्राई करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए. ये ट्राई करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए. के क्वेश्चंस कम हुए. मेरे क्वेश्चंस बहुत कम हुए. What inner work looks like. It's all about creating and finding balance. Don't overdo anything. That has been my experience. और ज्यादा प्यार ही प्यार देना है. नहीं, मुझे अगर किसी के लिए प्यार नहीं आ रहा तो मैं नहीं शो कर पाऊंगी. तो सर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, बेटा अगर पहले वालों ने डॉक्यूमेंट ना किया होता, तेरी तरह सोचा होता ना, तो आज यहाँ पे बैठ के तू ना एक्सपीरियंस कर रही होती. हुक चाहिए होता है जिसको पकड़ के आप ऊपर ऊपर चल सको. मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो होगी जो मुझे हेल्प करेगी. योर कैपेसिटी टू फील ऑल द इमोशंस, that also increases. If I am doing something, why am I doing it? What is peace? What is contentment? What is life purpose? वो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी. मैंने ज्यादातर क्रिया कुंडलिनी की प्रैक्टिसेस देखी हैं. शक्ति चालिनी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं बहुत करती होती थी. I need something more, but वो more क्या है नहीं समझ में आता था. नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मेड शो. टुडे वी हैव ऑन आवर शो अनूप इंदर कौर. She is a clinical psychologist and a spiritual seeker. Today we are going to dive deep into her journey, her spiritual experiences, what kind of belief system she has been shedding, what is the shadow work she has done, and how her life has been transformed so far. तो अ वेरी वार्म वेलकम अनूप जी. कैसे हैं आप? आपका स्वागत है द मेट शो में. Thank you so much, Yashika, and namaste. Good evening to everyone. Thank you for having me. Pleasure is all mine to have you on the show. And before we dive deep into your journey, let's just take 2 minutes. Let's just connect with the divine energy, set an intention, and surrender this session to the divine. So, Anup ji, if you're comfortable, please share with us your intention. I wish it helps other people. I wish it comes from the honesty with a clear intention. And I hope my journey till today, till this moment, uh, might inspire someone else who is going through, a tough period, who is trying to find oneself. That was simple intention. And yes, my intention first of all started with the gratitude for this day, for this episode. Very pure intention, and I am also grateful to you, to divine, that I got opportunity to connect with you and have this session with you. We are going to have a very very deep discussion, and my intention also aligns with what you have just shared with us, that if it inspires at least one person, at least one soul, then the job is done. And I also want this session to be one where they can understand what inner work looks like. What it's not just meditating, it's not just breath work, but it's about being with yourself and seeing the 360-degree view of your own life. And I think my questions are going to be based on that. I am seeking this information through your journey, and I've surrendered this to divine. If that happens, that happens. So let's get started. Just tell us something about you. आप कहाँ से हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में? Basically, मैं पंजाब से हूँ. There's this very small city named Barnala. I'm born and brought up there. Till I did my schooling there. उसके बाद I shifted to चंडीगढ़, जहाँ पे मैंने अपनी स्टडी की. एंड करेंटली मैं चंडीगढ़ में ही क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ. कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू लर्नड एंड हाउ दैट ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ? अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो प्रॉब्ली माइंड में, थॉट्स में वो जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी.
विशेस में वो जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, बट यस, एक गाइडेंस मिलना, उस जर्नी पे निकल पड़ना और एक कॉन्फिडेंस गेन करना, उस जर्नी को समझना, उसके जो जिसको हम उतार चढ़ाव बोलते हैं, उसमें एक्चुअली उनको फील करना, वो थोड़ा लेटर स्टार्ट हुआ। तो मेरा मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअलिटी में, साइकोलॉजी में, या यू नो क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, उसमें लाइक काफी यंग एज से था, व्हाइल आई वाज इवन इन स्कूल। तो मेरे माइंड में अजीब अजीब क्वेश्चंस आते होते थे तब। वो होता है ना कि आप बच्चे हो अभी, यू नो, ठीक है, बच्चा संभल जाएगा अपनी क्लास में, अपनी स्टडीज में चली जाएगी तो हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। But later on, I realized when I was in college that I'm very fascinated with human mind, how human mind works, how does human behavior that develop. हमारे जो जीन्स हैं, हम जो अपने बुजुर्गों से, बड़ों से चीजें लेके आते हैं, कुछ समझ, कुछ ट्रेडिशंस, जैसे आई रियली बिलीव कि जैसे हम कुछ अपने रिवाज, रीति रिवाज जो है, हम जनरेशन टू जनरेशन देते रहते हैं। हमारे शायद वो परदादा ने दादा वाली जनरेशन को सिखाया कि ये पूजा ऐसे करनी है, इस पर्टिकुलर डे पे आपने ये काम करना है। वही दादा ने आगे फादर को सिखाया, फादर ने अपने बेटे को सिखाया या बेटी को, है ना। तो वो चीजें आगे आगे चलती रही। जस्ट लाइक दैट हम हमारी सोच को, हम हमारे बिहेवियर्स को, हम हमारे माइंडसेट को बेसिकली वी पास देम ऑन जनरेशन टू जनरेशन। Right, And right. I used to get very fascinated and I was very intrigued कि ये सब चीजें कैसे होती हैं, आदतें एक जैसी कैसे हो जाती हैं, फैमिली वाले चाहे अलग अलग भी रहे लेकिन उनके कुछ ट्रेट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो उस चक्कर में मैंने शायद बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स अपनी स्टडी स्टार्ट की, बिकॉज मुझे ह्यूमन जेनेटिक्स को समझना था कि ये क्या होता है, क्या है। After my master's in that, I started working in the corporate sector plus research R&D. But एक एक फुलफिलमेंट जो होती है, एक कंटेंटमेंट जो होती है, वो कभी फील नहीं होती थी। वही यूजुअली जॉब में आप एमएनसी में जॉब कर रहे हो, तो वहां से आई फेल्ट दैट आई नीड समथिंग मोर, बट वो मोर क्या है नहीं समझ में आता था। एंड तब तक आई थिंक मेरा जो एक था ना कि व्हाट इज पीस, व्हाट इज कंटेंटमेंट, व्हाट इज लाइफ पर्पस, वो चीजें बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी। इफ आई एम डूइंग समथिंग, व्हाई एम आई डूइंग इट, व्हाट इज इट गोइंग टू, इज इट इवन गोइंग टू ब्रिंग एनी चेंज इन मी और पीपल अराउंड मी। तो शायद वहां से एक सोशल वर्क वाला एक वो चीज डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। देन मुझे एक बारी I used to go to this gym जहाँ पे there was a teacher जो मेडिटेशन करवा रहे थे, रिलैक्सेशन काइंड ऑफ करवा रहे थे। तो मैंने वो की और मैंने उनसे इन जनरल बात की कि ये आप क्या करवा रहे हो, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं एंड ऑल दैट। सो आई स्टार्टेड, उन्होंने जस्ट इनवाइट किया कि मेरे 1-2 सेशंस होते हैं वीक में, जैसे एक सेशन है या 2 सेशंस है, आप इफ यू वांट, अगर आपको ठीक लगता है तो वो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आई मेट माई टीचर, माई मेंटोर, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं हमारे, आई थिंक जिन्होंने हम दोनों को भी मिलवाया है, राइट। तो वो योगी बुद्धदेव जी, राइट। तो उनके भी टीचर रहे हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे बोला कि ऐसे करके सर कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हीलिंग का कुछ है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर लो। सो आई वेंट देयर एंड आई नेवर केम बैक। तो वहां से स्टार्ट हुआ। वहां से आई थिंक मेरे अंदर जो एक क्वेश्चंस होते थे ना, जो आई यूज टू फील कि मुझे इनके आंसर्स ढूंढने हैं। माई लाइफ पर्पस, आई वॉन्ट टू सर्च दैट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन विद मी, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन अराउंड मी। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो स्पिरिचुअल थी क्या थी उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, बस वो मेरे लिए ये था कि आई हैव फाउंड समथिंग, समवन who can help me find those answers.
तो वहां तो से आपके पास एक क्वेस्ट था यस, जो आपका मतलब करियर या पर्पस की डिससैटिस्फैक्शन से स्टार्ट हुआ था एंड दैट लेड यू टू गुरुजी. right, that led me to Guruji, and I remember, I used to shoot him with a lot of questions. जब भी हमारा session होता था, तो I used to take like life coaching from him initially, yes. And उस 1 घंटे के सेशन में I feel कि मैं 50 मिनट्स मैं बोलती थी और मैं क्वेश्चन पूछती थी, ये ऐसे क्यों है, ये क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या है, वो क्या है, एंड ही यूज्ड टू जस्ट कामली लिसन टू मी, और एंड के 10 मिनट में वो 2-3 बातें ही बोलते थे कि बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है, अब आप देखो क्या करना है. एंड दैट यूज्ड टू स्टिमुलेट माय थिंकिंग इवन मोर. तो वहां से उनसे बुक्स लेके पढ़ना, वहां से अपनी ऑब्जर्वेशन को सी, आई फील कि बहुत लोग ऑब्जर्विंग होते हैं. ऑब्जर्वेशन, एक कीन ऑब्जर्वर बड़े लोगों में होता है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो ऑब्जर्वेशन कहाँ पे कर रहे हो और किस डायरेक्शन में कर रहे हो. सो आई थिंक यस, एक कीन ऑब्जर्वर में शुरू से रही हूँ, क्यूरियोसिटी मेरे में शुरू से रही है, नॉलेज के लिए वो जो एक होती है ना, हंगर होती है, वो मेरे में शुरू से रही है. बट इट वॉज जस्ट लाइक कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक फाउंडेशन मिलनी स्टार्ट हो गई कि दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉर. और वो मुझे सर ने काफी अच्छे से चीजें समझाई कि ओके, दिस इज द डायरेक्शन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट. तो इस रास्ते पे चलो और ढूंढो. एंड ही जस्ट तो लेड आपके मी. क्वेश्चंस कम हुए? मेरे क्वेश्चंस बहुत कम हुए. आई थिंक आज की डेट में मेरे को बहुत स्टिल क्वेश्चंस होते हैं, बट that stability to that patience to sit with my questions and to wait for the answers and not just So wander do the around. answers come? Yeah, they do, definitely they do. Sometimes yes, you need to go look for them, but again, आप किस इंटेंशन से जा रहे हो, आप किस बेचैनी से जा रहे हो, और आप कितने ठहराव से वहां पे रुक के सोच रहे हो. आई थिंक वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे खुद में अभी चेंज लगती है कि ओवर द इयर्स जब मैंने इस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया, अ पेशेंस, अ स्टेबिलिटी हैज कम टू सम एक्सटेंट. आई एम स्टिल फाइंडिंग माय वे. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब हो गया है. आई थिंक दिस इज वन थिंग, आप लर्न करते रहते हो, आप ग्रो करते रहते हो. द मोमेंट यू फील कि अब हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, आई थिंक आपने अपनी ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा दिया, आपने अपनी सोच पे फुल Right, स्टॉप लगा दिया. बिकॉज हमारा दिमाग ना right. वो इतना सा है, बहुत छोटा सा दिमाग है हमारा. और जितनी नॉलेज पड़ी है दुनिया में, जितनी नॉलेज लाइफ के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में पड़ी है, हम नहीं कंटेन कर सकते. हमारा ब्रेन फट जाएगा. व्हाट आई फील इज, यू नो इट कैनॉट कंटेन द एक्सटेंट, द प्रोफाउंडनेस ऑफ दिस होल यूनिवर्स एंड द नॉलेज दैट दिस यूनिवर्स गिव्स अस. सो मेरा मानना है कि चलते रहो, सीखते रहो, चलते रहो, ग्रो करते रहो. You cannot do everything in just one life. But yeah, एक फोकस होना चाहिए. वहां पे हम ऐसे भटकते रहें कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जो मैं पहले करती थी कि ये ट्राई करके देख लेती हूँ शायद कुछ हो जाए, ये ट्राई करके देख लेती हूँ शायद कुछ हो जाए ना. बट अब वो डायरेक्शन मिलने के बाद अब मैं इस डायरेक्शन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ. So I think it's all about concentrating your energy in one direction. And आपने बहुत सारी बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ पे दिए हैं. एक तो आपने कहा कि क्यूरोसिटी थी आपके पास. क्यूरोसिटी जो है इट्स व्हाट स्टार्टेड द जर्नी, एंड देन थ्रू द जर्नी यू लर्नड द पेशेंस टू वेट फॉर द आंसर्स टू कम. yeah, एंड आई थिंक क्यूरोसिटी हम सबके पास होती है, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जूझने में निकल जाता है कि कहाँ से क्या मिल जाए. एंड आई थिंक अगर ये पेशेंस जर्नी से मिल सकती है तो इट्स मार्वलस. yeah, एंड definitely. आपने कहा कि आपकी एनर्जीज बहुत स्प्रेड आउट थी, आप सब कुछ ट्राई करके देख लेना चाहते थे. एंड Hmm. व्हाट दिस हेल्प्ड यू विद इज
brought your energies back, and now you are laser sharp focused on what actually matters to you. Yes, absolutely. है ना? And I Wonderful. thank you. And also, I feel spiritual practices, I don't know, a lot of people have different perspectives about spirituality, right? My perspective is Hmm. very simple. Something that is giving you uh, stability, something which is giving you peace, something which is, holding you uh, to the ground, that is keeping you grounded and anchored. I think that is spirituality for any person. With through spiritual practices on this journey of spirituality, I feel your capacity to feel all the emotions, that also increases. You know, Right. I feel Yes. if one has to, it's not just about love. I feel spirituality, ट्रू स्पिरिचुअल फॉर मी, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो होगी जो मुझे हेल्प करेगी हर इमोशन को फील करने में, उससे डरने से नहीं. मुझे डर लग रहा Hmm. है, मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करूं. मुझे जेलस हो रही है, मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करूं, एंड आई हम्बली एक्सेप्ट दैट. मुझे बुरा लग रहा है, मैं Very उसको भी. powerful. मुझे एपैथी हो रही है, मुझे किसी के लिए या किसी की पेन से अगर कुछ नहीं भी महसूस हो रहा, मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट करूं. मैं उस गिल्ट में ना बैठूं. अगर मुझे गिल्ट हो रही है, मैं उसको फील करूं, बट मैं उसमें बैठ ना जाऊं. मैं किसी भी इमोशन में धस ना जाऊं. Thus प्यार na है jao. तो ऐसा Very नहीं है कि powerful. मुझे बहुत ज्यादा प्यार ही प्यार देना है. नहीं, मुझे अगर किसी के लिए प्यार नहीं आ रहा तो मैं नहीं शो कर पाऊंगी. फॉर मी, Hmm. Hmm. इफ A इट total हेल्प, acceptance of self. इट्स द टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ. हाँ, अगर मेरे से कोई नहीं भी काम हो रहा, अगर आज मैं अच्छा नहीं सोच पा रही हूँ, आज मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ, मैं सेल्फ लव नहीं कर पा रही हूँ, तो दिस इज माई प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज माई रियलिटी फॉर टुडे. फॉर मी दैट इज Beautiful. स्पिरिचुअल. Right, right. So, अगर आप अपनी जर्नी में से कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, समथिंग दैट स्टिक टू योर हार्ट. हम्म. या हाँ, काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे. मतलब आई फील कि जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, हम मेडिटेशन करें, हम नॉर्मल ब्रीदिंग भी करें, व्हेन यू कैन कनेक्ट विद योर ओन ब्रेथ, तो Hmm. आप कहीं ना कहीं पे आप में ना एक ठहराव आने लगता है. आप बेचैन फील करते हो, बट यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट बेचैनी समटाइम्स. वो आपको परेशान नहीं करती. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट फॉर मी, बट Right. बहुत It सारी never चीजें, is. या नथिंग इज ऑलवेज सॉर्टेड आउट, है ना. बट उसका ये Hmm. मतलब नहीं है कि हम रुक के बैठ जाएं या हम लर्न करना बंद कर दें. तो अभी भी Hmm. जब मैं कई बार मैं बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस करती हूँ. मतलब एज ऑफ नाउ, जैसे मेरी जो प्रैक्टिस चल रही है अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, मुझे उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट यस डेफिनेटली मैं बहुत सिंपल हीलिंग करती हूँ. सिंपल मैं ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग अपनी करती हूँ. आई ट्राई कि मैं मतलब पूरे दिन में 5-10 मिनट निकाल के आई जस्ट फोकस ऑन, यू नो I just reflect upon where my life is going. For me, that is Hmm. enough of meditation at present. Hmm. पर जब मैंने ये स्टार्ट किया है, तो मैंने कुछ एग्रेसिव प्रैक्टिसेस यस डेफिनेटली की हैं. जैसे सर के साथ ही, गुरुजी के साथ मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स भी किया है. शाश्वत, ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं. हीलिंग मैंने की है लेवल 5 तक. Hmm. आई थिंक 2-3 तंत्र का भी कुछ कोर्स किया है, और क्रिया कुंडलिनी का भी कोर्स किया है. तो जब मैं वो प्रैक्टिसेस करती थी, यू नो थोड़ा मैं शायद कुछ लोग मुझसे ना अग्री करें, बट आई फील कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना, उस टाइम पे हम जो फील कर रहे होते हैं, हम काफी बार अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो Hmm. प्रेजेंट की रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा हुई मेरे साथ, वेर इन आई गॉट टू नो कि चल क्या रहा है. Hmm. Hmm. आप आपकी जो एक कहीं ना कहीं पे इंट्यूटिव
पावर जो होती है मेरे ख्याल से वो रिफाइन होती है, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर फियर्स, बिटवीन व्हाट यू थिंक की हो रहा है, व्हाट यू फील की हो रहा है, एंड द इंट्यूशन। तो कहीं ना कहीं पे सर की गाइडेंस से ही मुझे उन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि कहाँ पे एक इंट्यूटिव पावर वर्क कर रही है और कहाँ पे वो सिर्फ मेरा इनर एक फियर है, या देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन। आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी में ना ये चीज बहुत प्रॉब्लमैटिक रहती है कुछ लोगों के लिए। सम पीपल हैव वेरी गुड कॉन्शियसनेस, वेरी ग्रोन कॉन्शियसनेस, जो वो बहुत इजीली कर लेते हैं, पर मेरे लिए मुश्किल रहा। तो मैं जो भी आज चीज बोल रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना, कि मेरे लिए उस चीज को समझना कि ये एक प्रैक्टिस के थ्रू, जिसको हम इंसाइट बोलते हैं, कि ये इंसाइट आई है। एंड ऑल्सो एक बिलीफ सिस्टम जो मैंने शेड किया। मुझे लगता है कि मुझे ना वो रहता था कि कोई भी आपकी लाइफ में आया है तो भाई बस ये पर्सन है। आपके आपकी खुद के फैमिली मेंबर्स भी उसमें हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट आई रियलाइज कि जो पर्सन जितने टाइम के लिए जो आपको सिखाने के लिए आया है वो उतना टाइम बहुत अच्छे से रहेगा, एंड देन सडनली यू विल हैव टू लेट गो। So I think somewhere letting go was, I would say, that stood out for me, जो पहले मैं नहीं कर पाती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो मेरे अपने कुछ हैबिट्स के लिए भी होता था। अब शायद कहीं ना कहीं पे ये हो गया है कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, नहीं भी हुआ, थोड़े टाइम बाद आप परेशान रहोगे, आप तंग रहोगे, आप रोओगे, हर कुछ होगा आपके साथ, आपको एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, डर लगेगा, सब होगा। थोड़े टाइम बाद आप में वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी कि इसका पर्पस जो था ना वो इतना ही था। आई थिंक वो मुझे हेल्प भी करने लगा। अभी वो मुझे कहीं ना कहीं पे इट हेल्प्स मी connect with the purpose more often rather than sticking to the person, the work at hand, the task at hand. So what all techniques did you used to, and आपने स्टार्टिंग में भी शेयर किया हमसे कि आपने ये सब कोर्सेज करे हैं ओवर द टाइम, आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, but after like spending good amount of time with those practices, good amount of time with yourself, now you are at a stage कि अगर आप 10 मिनट भी you sit with yourself and you um, like try to contemplate where your life is going, that much is powerful meditation for you. Right. I understood it right. या एब्सोल्युटली। मैंने ज्यादातर क्रिया कुंडलिनी की प्रैक्टिसेस की हैं, शक्ति चालिनी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं बहुत करती होती थी। तो बट यस, आई फील स्पिरिचुअल जर्नी पे भी ना, डोंट ओवरडू एनीथिंग। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस। वो होता है ना कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, बट आई थिंक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ऑल्सो बैड। बाकी आई हैव डन दैट। मेरे पास फेज था एक लाइफ में कि मैं 3 से 4 घंटे थ्रू आउट द डे आई वाज मेडिटेटिंग मल्टीपल टाइम्स, एक एक घंटे का सेशन, 45 मिनट्स का सेशन। एंड उससे ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी आ जाती है, या ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता चल जाता है, आप कहीं और ही निकल जाते हो। आई स्टार्टेड फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद माई ओन लाइफ। जिन चीजों में मुझे पहले मजा आता था, आई स्टार्टेड लाइक, मतलब मैं अलग ही जोन में थी कि मुझे ना किसी से बात करनी होती थी, फिर ना मुझे किसी के साथ रहना होता, और दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी होलिस्टिक स्टेट एज वेल। आपके पास एक फेज हो सकता है कि आप उसमें रहो, बट देन इट्स नॉट अ रिकमेंडेड वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। एब्सोल्युटली। रादर इस जर्नी पे चलते चलते ना, आई मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल, लाइक एवरी काइंड ऑफ पीपल, जो जिनके साथ मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसे वाले लोग मिलेंगे लाइफ में। और यू नो, दे वर नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल वो प्रैक्टिसेस में नहीं थे, बट आई फाउंड देम मोर स्पिरिचुअल देन एनी स्पिरिचुअल पर्सन हु इज डूइंग प्रैक्टिसेस। जितने लोगों के साथ बैठ के मैंने वो प्रैक्टिसेस की हैं, मान लो, है ना,
जितने लोग मुझे उसके बाद मिले हैं, ये लोग उनसे बड़ी स्टेबल स्टेट में थे और ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते थे, बट द थिंग दैट वाज कॉमन इन देम वाज they knew what they are doing, they are enjoying what they are doing, and they have this thing in mind that accept करो जो है, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। हमेशा आप नहीं रहोगे, हमेशा आप स्टेबल भी नहीं रहोगे, है ना? बट अगर okay. I mean that's part of life too. Yeah, that's absolutely part of it. और अगर आप दिन में एक भी अच्छा काम कर पा रहे हो ना, दिन में एक भी पर्सन खुश होके जा रहा है, या आप अपने को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हो, दैट्स फाइन, इवन इट्स 0.1%, दैट्स फाइन। अगर आप अपना नॉन प्रोडक्टिव डे भी एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि भाई आज कुछ नहीं है, आज बस लेटना है, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, एंड यू आर एंजॉयिंग, यू आर एबल टू एंजॉय दैट, आई थिंक दैट्स स्पिरिचुअलिटी, एंड आई लिटरली मेट सच पीपल। Yeah, so, that is a state where spirituality would leave you if you are not already on that state, I think. Absolutely. And spirituality is more of a state rather than the combination of practices. That is very important part of it, no doubt. But eventually हम उससे क्या सीख कर रहे हैं, that is also very important. एक इंटेंशन होना जरूरी है। Yes, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे प्रोपिगेट, ऑब्वियसली अगर हम प्रोपिगेट नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशंस को कैसे सिखाएंगे? तो a lot of people, I remember, मेरी शायद सर से ये एक बार ऐसी बात हो रही थी कि इसको डॉक्यूमेंट कर लो, तो मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंट तो नहीं मैं कर सकती, मैंने फील कर लिया, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, दैट इज एनफ। तो सर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, बेटा अगर पहले वालों ने डॉक्यूमेंट ना किया होता, तेरी तरह सोचा होता ना, तो आज यहाँ पे बैठ के तू ना एक्सपीरियंस कर रही होती, समथिंग लाइक दैट, हमारी ऐसे कोई बात हुई थी। तो जो लोग कोर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आगे लेके जाएंगे, उनका आई थिंक पर्पस बहुत डिफरेंट है। प्रॉब्ली मेरा पर्पस उस वे में नहीं है, मेरा पर्पस शायद थ्रू साइकोलॉजी, सेल्फ हीलिंग, शायद उसके थ्रू है अभी के लिए, जितना मुझे समझ में आया है टिल टुडे, जो मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूं। टोटली परफेक्ट, आई थिंक। जहाँ पे I think Einstein was a very spiritual person, but he was not a spiritual coach or a healer. He was a great scientist. APJ Abdul Kalam was a highly spiritual person, and he was a scientist. One who is able to find the purpose, I think that person is a spiritual person for me. Yeah, very true. I mean, that's the crux of it. Yeah, spiritual gurus हैं, different हैं, वो core practices करते हैं, बट शायद मैं अपनी एनर्जी अभी उधर पुट ऑन नहीं कर पा रही हूँ, पुट इन नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम मोर इनटू माय साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, जहां पे मैं स्पिरिचुअलिटी को एक वेपन लेके चलती हूँ ना, something that forms the ground or powers everything that you do. Absolutely. राइट। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट देना चाहूंगी। अनूप जी ने मेंशन किया कि उन्होंने क्रिया कुंडलनी का कोर्स किया है, शाश्वत किया है और रेकी हीलिंग किया है। तो ये सब कोर्सेज गुरुजी करवाते हैं, उनका वेबसाइट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दोज प्रैक्टिसेस जो आपकी एनर्जी की क्लीनिंग में, आपकी एनर्जी की एनहांसमेंट में, आपके प्राणा की एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं। Start to bring stability in you. So if you are looking or if you are seeking some stability in your life, if you are seeking your purpose, definitely these courses can help you. So do go check out and let us know if you have some awesome experiences like we do. Going forward, आप जो ये stability की बात कर रहे हो, जो intuition की बात कर रहे हो, I think कुछ ऐसा पार्ट तो आपको मिला होगा जो शैडो वर्क हम जहाँ कहते हैं, कि कोई आपका ऐसा पार्ट जो आपने भुला दिया था, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज अगर आप टोटल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो, तो वो कौन सा पार्ट था जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपना, और उसको आप कैसे, हाउ यू मर्ज्ड इनटू इट,
how you merge that into you, and how the life Hmm. changed or Hmm. transformed after that. I think I was rejecting my whole personality. Somewhere, अभी भी मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई एम आई लाइक दिस? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों मैं, Hmm. मेरे को क्यों अजीब अजीब क्वेश्चंस आते रहते हैं? दैट्स व्हाट आई फील. बट Hmm. accepting myself, accepting who I am, accepting the fact that whatever I expect from others, whatever I do for others, मेरे को वो वापस Hmm. नहीं मिलेगा, है ना? शायद उसी पर्सन से वापस ना मिले, शायद कहीं और से मिल जाए, एंड वो ना तो गारंटी है उसकी कि मिलेगा कि Hmm. नहीं मिलेगा. बट Hmm. वॉट एवर आई एम पुटिंग इन, वो एनर्जी फॉर्म में हो सकता है, वो इमोशन फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, इन एनी वे, Hmm. आपको वो वापस मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. जो पहले मेरे को होता था, मैंने ये किया यार, ऐसे कैसे मेरे साथ हो सकता है? आप, Hmm. आई एम हार्ड कोर बिलीवर ऑफ कर्मा. फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट इन योर, ये Hmm. मैंने धीरे धीरे सीखा. हार्ड वर्क करो, उतने ही प्रोपोर्शन में आपको चीजें मिल जाएं, ये शायद पॉसिबल ना हो पाए. बट देन Hmm. अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. यू हैव टू बहुत एक्सेप्ट कि ही जितना है, हिला देने वाली बात आप कह रहे हो. ये हुआ, ये ये- मेरे साथ, मेरे में ये चेंज आई है Hmm. ना? तो पहले नहीं होता था. पहले मैं अगर कुछ काम भी करती थी ना, मेरे दिमाग में यही रहता था, भाई कुछ ना कुछ तो इसका अच्छा सा मिलेगा तब करूंगी. बट वो चीज धीरे धीरे Hmm. शेड ऑफ हुई है, जो आई फील मेरे साथ हुआ है. एक प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन जो है यस, वो थोड़ा शेड हो वो गई. हुआ है. वो आई थिंक सर से मिलने के बाद बहुत ज्यादा उस चीज पे मैंने इंटेंशनली वर्क नहीं किया. मुझे पता भी नहीं था कि ये होता है. ये जब चेंज आई ना, उसके बाद रियलाइज हुआ कि ये था, स्ट्रॉन्ग था. Hmm. तो अभी है कि वही करो, मेहनत करते रहो, काम करो. और वो काम कुछ किसी भी वे में हो सकता है. आपका प्रोफेशन हो सकता है, योर इमोशनल थिंग्स, दैट आल्सो होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हियर. कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आइदर आपको उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा. ऐसा Hmm. नहीं है वो इक्वल इक्वेशन कभी भी नहीं होगी. हाँ, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन कर जाए और दूसरे के पास कुछ भी ना हो, लेकिन उस मोमेंट में उसको वो चाहिए था, या आपको चाहिए था, या दूसरे पर्सन को चाहिए था. बस वो आएगा और प्रॉब्ली द पर्सन वुड लीव, यू वुड लीव, मे बी. आप क्वेश्चन करते हो, यार ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, जो बहुत था मेरे में, बहुत स्ट्रांगली था, और कहीं ना कहीं पे अभी भी है. मैं आई Hmm. नेवर डिनाई कि वो चीज खत्म हो चुकी है और मैंने पता नहीं क्या ही हर चीज को एक्सेप्ट कर लिया है. बट नो, अब शायद थोड़ा इजी हो गया है. अब शायद वो वाली थॉट्स ना उतना ज्यादा तंग नहीं करती हैं. ये फर्क पड़ा Hmm. है ना, कि अगर कोई मेरा इमीडिएट फैमिली मेंबर भी कुछ गलत किया, जिसने, मान लो मेरे साथ, मैंने उसके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं पे इट वॉज मेंट टू बी. दिस वॉज वॉट वॉज, मे बी समवेयर माई समथिंग हैज, सम एनर्जी हैज डिसाइडेड फॉर अस. कर्म कर फल की इच्छा ना कर, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, पर वो जीवन में लाना कितना मुश्किल है. इट्स वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट. हार्ड. वेरी मतलब वेरी हम वेरी. 10 रुपए भी अगर किसी को देते हैं तो हमें लगता है कि बस हमें तो मैंशन मिल जाए उसके बदले में. हम्म. बट वो, आई थिंक वो जब स्टेट आती है ना, एक स्टेबिलिटी की, एक एक्सेप्टेंस की, तब वो एक धीरे धीरे ये प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन जो है वो बैलेंस आउट होने लगता है, माइंड से जाने लगता है कहीं कहीं. आई थिंक एब्सोल्युटली. वो स्टेज बड़ी ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप वहां पे खुल के वो हो पाते हो जो आप होना चाहते हो, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में. बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक, पता है, एक्सेप्टेशन जो मुझे लगता होता है, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल खत्म भी नहीं होनी चाहिए. देन अगेन देन यू वोंट हम्म. ग्रो, यू स्टॉप ग्रोइंग. राइट, राइट. एक हुक बट चाहिए होता है जिसको पकड़ yes, के आप ऊपर ऊपर चल सको.
हाँ, बट आप अगर उसमें भी बैलेंस ढूंढ लो ना, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड फाइंडिंग बैलेंस, दैट्स ऑल। राइट। आई थिंक वही पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही आएंगे, अगेन बैलेंस, एंड ट्राई टू बैलेंस। पूरी लाइफ में अगर हमने लर्न कर लिया ना बैलेंस और स्टेबल होना, आई थिंक दैट्स गुड। मेरे गुरु एक बात कहते हैं कि जब तक आप ऐसा सोचो कि आप लहरों के बीच में सरफेस पे हो, तो जैसे लहर आएगी आप उसके साथ चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। बट जब आप स्टेबल हो जाते हो, जब आप इवॉल्व हो जाते हो, तो आप एकदम तले में आके बैठ जाते हो उसके। फिर समुद्र चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप सेंटर्ड हो। वो तो होगा ही, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ की अप एंड डाउन वेविंग होती ही रहेगी। बट आप कहाँ पे हो? क्या आप सरफेस पे हो कि आप तले पे हो? सो आई थिंक या मेरे और को लगता उसके है कि लिए स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प यू राइट राइट, और सेंटर उसके लिए योरसेल्फ। आपको बहुत बहुत सारे ना न्यू एक्सपीरियंसेस आने चाहिए लाइफ में, क्योंकि कई बार एक जैसी चीजों में हमें लगता है कि हो गया, हमने अचीव कर लिया वो जो स्टेबिलिटी थी, देन something different, something maybe challenging, maybe difficult, maybe even easier also, it has to come. तभी शायद सक्सेस भी जब आएगी तब पता चलेगा whether we are even you know capable enough to handle it. या जब वो लो वाला फेज आता है उसमें आपको अपने बारे में बहुत चीजें अगेन पता चलती हैं कि ये तो मैंने सोचा था मैंने ठीक कर लिया, और ये अभी कहाँ पे रह गया था। देन यू हैव टू मे बी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कि जो चीज सोची थी कि ठीक हो गई है अब शायद वो दोबारा से मुझे उस पर वर्क करना है, एंड दैट इज प्रॉब्ली एक हीलिंग का एक डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है वहां पे। सो इट्स नॉट एट ऑल, मैं जो मेरे पेशेंट्स या क्लाइंट्स भी आते हैं, आई यूजुअली टेल देम दैट हीलिंग हो गया, थेरेपी हो गया, इट्स नॉट, द ग्राफ विल नॉट गो लाइक दिस, वो ऐसे 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 करके जाएगा, वो उलझता रहेगा, फिर खुल जाएगा, कहीं पे आगे चल के उलझ जाएगा, और वो हमारे साथ होता है, मेरे साथ इस जर्नी पे हो रहा है, हो ही जा रहा है, इट्स फाइन, है ना। तो बट उस चीज में अगेन उस चीज से डर के कि या नेगेटिव होके या पेसिमिस्ट होके नहीं बैठना होता, जो इनिशियली एक दो बार मेरे साथ शुरू शुरू में हुआ, जहाँ पे मुझे लगा था कि ये वाली चीज मैंने कर ली थी ठीक, ये क्यों आ रही है वापस। बट आपका ब्रेन उस चीज को रखता है, इम्प्रेशन रखता है, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को कहीं ना कहीं पे कोने में पड़ी होती है, और वो बीच में एकदम से ऐसे करके पॉप अप हो जाती है। देन अगेन यू हैव टू मे बी रिफ्लेक्ट, या कहीं ना कहीं पे हमें एक समझ आनी शुरू हो जाती है कि अब उसको साइडलाइन कर देना है, कितना करना है, कितना सोचना है, वो चीज इज वेरी वेरी कितना इंपॉर्टेंट, एनर्जी उसमें डालना है अभी। उसमें डालना है, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। आई थिंक फॉर मी, अगर मैं उस चीज को लर्न कर लूँ ना तो मुझे लगेगा कि कुछ मैंने कर लिया थोड़ा सा। आई टोटली अग्री विद यू। कई बार हम बह जाते हैं कि हाँ ये चल रहा है, इसमें मेरा क्या पार्ट है, उसका क्या पार्ट है, और Please, बाल की खाल जो होती है कई बार हम उस लेवल तक भी चले जाते हैं। जाते सो हैं, लेकिन आई थिंक वहां से वापस आना बहुत जरूरी होता है, उसको रियलाइज करके ना कि अब जा रहे हैं उस साइड पे, फिर वापस आना बहुत ट्रू, जरूरी ट्रू। It was a very insightful conversation, Anup ji. I thoroughly enjoyed it, and I don't want to end this, but we are almost near the time, so है। we have we are about to wind this up, and I have just one last question. If there is any message that you have for the viewers. ऑनेस्टी के साथ किया हुआ काम मुझे लगता है कि कुछ हद तक कहीं ना कहीं पे इट विल लीड यू समवेयर समवेयर रियली गुड। वो हमें इमिडिएटली नहीं समझ में आता, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बट आई ट्रस्टेड द प्रोसेस। सो ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन दिस जर्नी, कि कहीं ना कहीं तो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, और ऑन द वे आपको पेशेंस आती रहती है, लिटरली आपको पेशेंस आती रहती है, और धीरे धीरे देन यू नो आफ्टर सम टाइम यू जस्ट सिट एंड यू रिफ्लेक्ट बैक, कहाँ से शुरू किया था,
तब आपको पता चलता है कि नहीं, आगे आ चुके हैं, वहीं पे नहीं अटके हुए हैं। हम्म। और वो रियलाइजेशन बड़ी धीरे धीरे आती है, एंड दैट इज प्रॉब्ली द ब्यूटी ऑफ इट। वो जो एक स्लोनेस है ना, वो जो एक साइलेंस है, जब साइलेंस कंफर्टिंग हो जाए ना, आई थिंक इट्स अ विनिंग, वो दैट स्टेट। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, टोटली ब्यूटिफुल। आई थिंक मेरे लिए ये सेशन गाइडेंस था। मेरे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि शायद मैं वहां अटकी हुई थी, और आई फाउंड माई वे आउट। आई मीन आई फाउंड पॉसिबिलिटी कि हाँ, देर इज अ वे आउट। व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको इंसाइट मिली है, टोटल एक्सेप्टेंस कैसा दिखता है, बीइंग इन स्टिलनेस कैसा दिखता है, पेशेंस होना कैसा दिखता है, बीइंग विद यू होना कैसा दिखता है, सेंटर्ड होना कैसा दिखता है, इफ यू ऑल्सो गॉट these insights, if you also see this as a possibility you want to unlock in your life, do let us know. And I thoroughly enjoyed this. So thank you so much. Thank you, viewers. Thank you, Anupji, for your time and energy. I'm really, really grateful. थैंक यू यशिका, थैंक्स फॉर हैविंग मी, एंड थैंक्स टू सर ऑल्सो, जिन्होंने हमें मिलवाया। जिन्होंने Thank यू you, नो Guruji. ये करना है, जो मर्जी Right. हो जाए ये तुम दोनों करो। तो यस, थैंक यू सो मच सर। True. या Thank you.